Bonjour mes étudiants. So today in this video, we are going to read chapter 7 of your Entrejeunes, your culture part. That is, the name of the chapter is En pleine forme, which means in a great form or in a great shape. Alright, very important chapter. इस chapter से related letter के आने के भी काफी chances हैं. So please अच्छे से इसको read करिए, learn कीजिए और फिर वहाँ पे attempt कीजिए. ठीक है? So let's see. Dennis says, Salut Ali, comment vas-tu? Hi Ali, how are you? Ali बोलता है, Merci, je vais bien. I'm fine. But, mais, tu sais, j'étais malade. Malade का मतलब sick. You know, आप जानते हो कि I am sick. I was sick. j'étais. ये आपको imperfect में दिया हुआ है, ठीक है? तो वो बोलता है नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ, but you know, I was ill. Et trop stressé and too stressed. À cause the examen. क्यों मैं था stressed? Because of my exams. But maintenant now I am in a good form. अब मैं ठीक हूँ. डेनिस बोलता है, c'est très bien. Est-ce que tu as fait pour te remettre en pleine forme? That's good. And what did you do to get back in form? तुमने क्या ऐसा किया कि वापस तुम नॉर्मल हो गए, वापस शेप में आ गए, फॉर्म में आ गए? तो उसने क्या बोला अली ने? अली says to the ball. To the ball means first of all, सबसे पहले मैंने क्या किया? Je ne mange pas plus de fast food. I no longer eat fast food. मैंने fast food खाने बंद कर दिए. Au revoir, bye bye, les burgers, les chips et le coca. मैंने goodbye कर दिया burger को, chips को और cold drinks को. Ces jours-ci, these days, ces jours-ci, these days, je me réveille. Je me réveille means I wake up. I wake up a dummy. Dummy means half an hour plus tôt. Plus tôt means more early. ठीक है, मैं आधा घंटा पहले उठ जाता हूँ in the morning. le matin, je fais du yoga. मैं योगा करता हूँ. Followed by the 10 minutes of meditation. Alright. So Pauline बोलता है formidable. That's wonderful. That's great. Tremendous. Cette année moi aussi. This year, me too. J'ai fait de bons résolutions. मैंने भी बहुत अच्छे resolutions बनाए हैं. Je me promène tous les soirs ou je fais du jogging. मैं क्या करूँगा? I walk every evening. मैं evening में walk करूँगा and jogging भी करूँगा. En plus, moreover, je mange de la salade. मैं salad खाऊंगा et des crudités. Crudité का मतलब होता है बेटा mixed raw vegetables. Okay? Crudité का मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पर mixed raw vegetables. Alright? तो वो बोलता है कि मैं तो कुछ raw vegetables भी mix करके खाता हूँ. Je bois beaucoup d'eau régulièrement. D'eau is water और मैं regularly क्या करता हूँ? Water को मैं regularly मैं पानी पीता रहता हूँ. ठीक है. Dennis बोलता है tu as raison, you're right. Parfois, sometimes, je fais du sport comme le foot ou le tennis quand je suis libre. Libre is free. वो कहते हैं जब भी हम free होते हैं हमें कभी-कभी sports भी खेल लेना चाहिए जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया. Et c'est ainsi que je me sens toujours à pleine forme and that is how I'm always in a great form. इसी वजह से मैं अच्छी फॉर्म में रहता हूँ, अच्छी शेप में रहता हूँ. ठीक है, अच्छी हेल्थ है मेरी. ऑलराइट, तो यही था आपका चैप्टर, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. आगे चलते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज trouver la form verbal. ये आपको कुछ वो दिए हुए हैं नाउन्स. आपको उससे क्या बनाना है? वर्ब बनाना है. यून प्रोमेनाड. प्रोमेनाड का मतलब होता है बच्चा वॉक. ठीक है, तो ये कौन सी वर्ब है आपको अच्छे से पता है. टू वॉक इज स प्रोमेने. प्रोनोमिनल वर्ब है इसलिए हम स प्रोमेने यूज करेंगे और चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी. सेकेंड है यून बुआजो. बुआजो से कौन सी वर्ब बनेगी? बुआजो मीन्स ड्रिंक. अ ड्रिंक, सो बुआर, टू ड्रिंक. ठीक है. अ ज मीन्स अ प्ले और अ गेम और इससे वर्ब बनती है जुए, टू प्ले. अ रवैये इज वेकिंग और इससे जो वर्ब है वो बोल रहा था ना मैं आधा घंटा पहले उठ जाता हूँ. स रवैये. ठीक है बेटा. ओके, अब ट्रू फॉल्स देखते हैं. फर्स्ट ट्रू vrai or faux says il faut manger du fast food à chaque repas. It is necessary to eat fast food in every meal. So that's true. That is vrai or faux? No, that is faux. Second sentence says le sport est très bon pour la santé. The sport is good for health. Yes, that is vrai. Third sentence says il faut boire beaucoup d'eau. It is necessary to drink a lot of water. Yes, that's vrai. Fourth sentence says on doit éviter de manger des fruits et des légumes. Éviter का मतलब याद रखना बेटा. Éviter means avoid.
Alright, we must avoid eating fruits and vegetables. No, that is not true. That is false. Fruits और vegetables तो ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए ज्यादा, ठीक है. Alright, now आगे है शेला मेडिसिन. मेडिसिन की प्लेस पे, शे is a preposition which means place. नरगिस है मलाद. Now who is sick? Malad is sick. नरगिस की तबीयत थोड़ी खराब है. Elva शेला मेडिसिन, so she goes to doctor's place or clinic. La medicine. Doctor says, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? What's the matter? What's happening? क्या हुआ? Nargis says, je ne sais pas. I don't know. Je ne me sens pas bien. I'm not feeling well. J'ai de la fièvre. मुझे फीवर लग रहा है. Et the problème de respiration. और मुझे कुछ breathing issues लग रहे हैं. Breathing problem है. Medicine बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, depuis quand souffres tu? कब से आप सफर कर रहे हो? Since when you are suffering? So Nargis says, depuis hier. Depuis hier, doctor. Since yesterday. Now Dr. Askew, इसका मतलब लिख लीजिए. It means examines. डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, इसका फीवर वगैरह चेक करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है. उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं सनेपा ग्राव. ग्राव मीन्स सीरियस. वो बोलता है इट्स नॉट सीरियस, ठीक है, ज्यादा सीरियस इशू नहीं है. त्युआ अत्रापे रियूम. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इससे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जरूर पूछते हैं, मैचिंग में भी दे देते हैं. अत्रापे मीन्स कैच. तो डॉक्टर बोलते हैं यू कॉट कोल्ड. रियूम मीन्स, रियूम का मतलब होता है बेटा कोल्ड, एंड अत्रापे मीन्स टू कैच. डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें कोल्ड हो गया है. जो वे तब प्रिस्क्राइब दे मेडिकामो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है. त्यो सारा ग्यूरी, ग्यूरी ईआर वर्ब है विच मीन्स टू क्योर. आप ठीक हो जाएंगे इन 2 days. Within 2 days you will be fine. Voila la ordonnance. Ordonnance means prescription. All right. Ordonnance का मतलब लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन होता है. ट्यूपो आशते से मेडिकामो आला फार्मेसी. आप जाके प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए और केमिस्ट शॉप से, फार्मेसी से आप मेडिसिन ले सकते हैं. Je vais remplir le formulaire de la sécurité sociale. Bon, repose-toi bien, au revoir. वो बोल रहा है आई एम गोइंग टू फिल द फॉर्म ऑफ द सोशल सिक्योरिटी. ये क्या होता है अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं. काफी हम सालों से देख रहे हैं बोर्ड में सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है. डॉक्टर बोलता है रपोज हुआ, टेक रेस्ट, और रवुआर, गुड बाय, ठीक है. ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं. सोशल सिक्योरिटी क्या है ये रहा. तो हम इस पेज पे आते हैं. सोशल कवर, सोशल सिक्योरिटी, ओके. ऑर्गेनाइजेशन, ये बेटा एक तरह से आपके मेडिक्लेम कार्ड है, ओके. ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल वीजा assure la security material de travailleur et de leur famille en cas de maladie, d'accident de travail, de maternité, etc. et à leur garantir une retraite, ओके. इसका मतलब है ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका टारगेट है टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स की फिजिकल सिक्योरिटी एंड देयर फैमिली, और साथ साथ उनकी फैमिलीज की भी, इन केस ऑफ इलनेस, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी एट वर्क, अगर वो काम पे हैं और किसी काम की वजह से वो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो भी कवर होगा. और मैटरनिटी, डिलीवरी वगैरह उनके वाइफ की, या अगर वो खुद से पर्सन जो लेडी है वो काम कर रही है, वो भी वो प्रोवाइड करेंगे. एंड गारंटी करते हैं रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है. तो ये जो कार्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा वो क्वेश्चन जरूर बोर्ड में पूछ लेते हैं. तो अच्छे से इसको एज इट इज वर्ड टू वर्ड लर्न कर लीजिए, यू विल गेट 2 marks, ओके. ऑलराइट, सो लास्ट में हमें इस चैप्टर में मेन ये दिया हुआ है फ्यू एडवाइसेस. कौन सा? ये मीन्स एडवाइसेस टू बी इन अ गुड फॉर्म. हमें क्या करना चाहिए? ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू साइक्लिंग, डू माउंटेनिंग और हाइकिंग, टेक स्टेयर्स, स्लीप वेल, डू एरोबिक, डू फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, डू योगा एंड डू और प्ले इन अ टीम, ठीक है. ओके, चलो अब इसके कल्चर पे आते हैं. कल्चर के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आएंगे एग्जाम में. फर्स्ट क्वेश्चन वही है जो भी अभी हमने जस्ट रीड किया कि सोशल सिक्योरिटी क्या है. आप प्लीज इसको लर्न करके लिख लीजिए.
ये देखिए 2016 में बोर्ड में पूछा था ऊ वातों कौंत ओए मलाद, हम कहाँ पर जाएंगे जब हम बीमार होते हैं, तो हमें क्या लिखना है, शेला मेडिसिन, डॉक्टर्स क्लिनिक, ठीक है। क्वेश्चन 3 सेज कप और फेयर पुडेस्ते प्लेटफॉर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। what can we do to be in a good form, okay? तो हमें क्या करना है, अभी हमने जो सारे एडवाइसेस पढ़े उनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं, बुआर बोकुद ओ, है ना, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स, डू एक्सरसाइजेस, योगा, एरोबिक, डू स्पोर्ट्स एंड स्लीप वेल, ऑलराइट। क्वेश्चन 4 सेज गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फास्ट फूड, जो हमने ऑन्त्रजन में चैप्टर में पढ़ा वही आप लिखेंगे, ले बर्गर, ले चिप्स, ले कोका, ओके। नाउ when there is a possibility to catch a cold हमें कब होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, when it is cold, जब कोल्ड होगी, जब ठंड होगी तब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है लोगों को कोल्ड होने की। ऑलराइट, क्वेश्चन 6 सेज, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, या आपको मैचिंग में भी पूछ लेते हैं और क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, तो देखते हैं। अवुआर यून इंसोमनी, इंसोमनिया अच्छे से पता है, इम्पॉसिबिलिटी टू स्लीप, अच्छे से नींद ना आना, सो ना पाना, तो इंसोमनिया। अवुआर इंक्रीज कार्डियक, ठीक है, तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू कार्डियक यानी हार्ट। अवुआर यून वर्तेज, वर्तेज इज चक्कर आना, तो जब चक्कर वक्कर आएंगे तो न मोंजपा प्रॉपरमो, वी कांट ईट प्रॉपरली, ऑलराइट। पासे यून नुई ब्लॉ, पासे ला नुई सो सोमये, ऑलराइट। देखो इनमें कंफ्यूज मत होना कि इनसोमनिया और न्यूई ब्लॉ में क्या डिफरेंस है, न्यूई ब्लॉन्च, ठीक है। व्हाइट नाइट का मतलब है बेटा, देखो इनसोमनिया पेशेंट्स को होता है जिनको डेली नींद नहीं आती है, ठीक है, उनको नींद ही नहीं आती है, सारी सारी रात वो बस इधर उधर ऐसे ही लेटे रहते हैं, अपना टाइम स्पेंड जैसे भी करते हैं, ठीक है। नाइट ब्लॉन्च, व्हाइट नाइट का क्या मतलब है कि कल मान लो मेरा एग्जाम है और मुझे रात को सारी रात टेंशन रही, उस वजह से मैं सो नहीं पाई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मैंने तो कल रात को व्हाइट नाइट स्पेंड करी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, एक नाइट, बट आज जब मेरा एग्जाम अच्छा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, अच्छे से नींद आएगी, तो मेरे को इंसोमनिया नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और इस चैप्टर से रिलेटेड ये लेटर भी आ सकता है कि आपने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है कि येस्टरडे यू स्पेंट अ व्हाइट नाइट, और आप उसको बताइए कि आपका एग्जाम था या क्या था, किस वजह से आपने ये लिखा है, आपने ऐसे स्पेंड किया है, ठीक है। जितने भी लेटर्स हैं बेटा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे चैप्टर्स के लेटर पोस्ट कर चुकी हूँ और कल्चर भी साथ साथ डाल रही हूँ, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है और उसको लर्न करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अत्रापे यून रूम, कोल्ड हो जाएगा तो हमारी नोज जो है उसका कलर पिंक हो जाता है ना। रेस्पिरेसियो यानी ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। नाउ क्वेश्चन 7 सेज दापरे द टेक्स्ट, एज पर द टेक्स्ट व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, हमने पढ़ा था, तो उसने बोला था एज पर द टेक्स्ट, हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स, उसने बोला था स्पोर्ट इज गुड फॉर हेल्थ। नाउ कैस्ट डॉक्टर देता नरगिस, डॉक्टर नरगिस को क्या बोला था, उसने बोला था इट इज नॉट सीरियस, आपको कोल्ड हुआ है और विद इन 2 days यू विल बी फाइन। क्वेश्चन 9 सेज कैस्कला मेडिसिन प्रिस्क्रीरा नरगिस, मेडिसिन ने नरगिस को क्या लिख कर दिया था, क्या बोला था, उन्होंने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दी थी, अपनी तरफ से नहीं दी थी, ठीक है, मेडिसिन लिख कर दी थी और बोला था फार्मेसी से जाके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मेडिसिन हम कहाँ से ले सकते हैं, फार्मेसी से। क्वेश्चन 11 सेज आफ्टर अवुआर प्रिस्क्रिब द मेडिसिन कैल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्म फिल करते हैं, तो डॉक्टर ने बोला था कि लेट मी फिल द सोशल सिक्योरिटी फॉर्म, जिसके ऊपर हमने अभी डिटेल में बात की है। क्वेश्चन 12 सेज व्हाई द पीपल हैव द प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेशन, क्यों हो रही है आजकल ज्यादातर लोगों को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, ओके। नाउ कॉमा सा पहला कार्ड द सिक्योरिटी सोशियल, ये क्या होता है, कार्ड द सोशल सिक्योरिटी क्या है, तो ये क्या है, एक तरह का इट इज अ वाइटल कार्ड, ठीक है। से त्यून कार्ड द एश्योरेंस मलादी, इट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, जो उसमें आपने पिक्चर भी देखी थी, आपका मेडिक्लेम कार्ड यू कैन से। क्वेश्चन 14 सेज द को आतिल पर सी ओ आ दे प्रॉब्लम द कर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो क्या हो सकता है, वी विल बी अफ्रेड ऑफ कार्डियक अटैक, ओके। क्वेश्चन 15 सेज क्या प्रॉब्लम वी कैन हैव इफ वी कैन नॉट ईट वेल, तो हमने पढ़ा था चक्कर वक्कर आता है, तो वही हमने लिखा है ओपावुआरला वर्तेश। नाउ क्वेश्चन 16 और 17 ध्यान से देखिए,
एक्सप्रेशन है जो मैंने भी डिटेल में बताया। अववार इंसोमनिया और पासे इन न्यू ब्लॉन्च में क्या डिफरेंस है दोनों एक्सप्रेशंस में। तो व्हाट वी हैव रिटन, सी इफ वी कैनॉट स्लीप ऑल द नाइट, एवरी नाइट हमें नींद नहीं आ रही है, तो एक पर्सन को इंसोमनिया है। बट टूथलानोइड, द होल नाइट, जो लास्ट नाइट मैंने स्पेंड करी उसमें मैं सो नहीं पाई थी ढंग से, तो इट मीन्स आई स्पेंट अ वाइट नाइट। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इससे रिलेटेड लेटर्स होते हैं। एक लेटर आता है कि आप अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करिए या कजन को लेटर लिखिए और बताइए कि हाउ टू बी इन अ गुड फॉर्म, या आपका जो कजन है या फ्रेंड है वो काफी मोटा हो गया है, ठीक है, तो उसको एडवाइस कीजिए कि कैसे वो गुड शेप में वापस आ सकता है, गुड फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा ये व्हाइट नाइट से रिलेटेड कि आप बहुत स्ट्रेस थे, आपने एक व्हाइट नाइट स्पेंड करी, तो आप लेटर लिखिए। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए, काफी चांसेस होते हैं इस चैप्टर के लेटर्स आने के। ठीक है, ऑलराइट, कीप लर्निंग एंड फॉलो फॉर मोर। मैट्स सी।